Hello students, in this video or in this lecture we'll study two major concept of vector calculus. Number one, divergence of a vector point function and physical interpretation of divergence. Number two, curl of a vector point function and its physical meaning. Let us start with the first point. Divergence of a vector. Students, these two topics which are related to the vector, which are very most useful in EC and electrical branch, and of course in the physics. So if you are from the EC and electrical branch, then you must understand these two topic, and this is very easy once you know the concept very well, students. Now let us see the definition of divergence of a vector. Let f bar x y z be any vector point function, then divergence of f, here we'll write capital F because it is a vector. Divergence of f is denoted by divergence of f is equals to del
dot f. Divergence of f can be denoted by del dot f, which is defined as follow. So del dot f is equals to, we know it very well, what is del by del xi, del by del yj, del by del zk, and here f is a vector. So we'll write f1i plus f2j plus f3k, where f is equals to f1, f2 and f3 students. Now you have to take the dot product of this two vector. So how will take the dot product of this two vector? So you can write del by del x f1, and you know it very well, I dot I is equals to 1, j dot j is also 1, and you can write k dot k is 1. So here you can see that I dot I means it is 1. Similarly, del f2 by del y, because j dot j is 1, plus del f3 by del z. So here we have found the divergence of a vector. So here you can see that there is no I, j and k. It means this gives us completely scalar quantity, students. So here we have found the definition of the divergence of a vector. So divergence of a vector, it means we'll write one note divergence of a vector is always scalar. So you have to remember this note. A divergence of a vector is always scalar. So now we'll see the physical interpretation of divergence. So what is the physical interpretation of a divergence? So del dot f is equals to del f1 by del x,
del f2 by del y, del f3 by del z. So this gives us actually the velocity vector, students. What does it give? It gives us velocity vector. Now suppose we have one physical body in three-dimensional geometry, students. Okay, if we enter the liquid, or you can say fluid, from this direction, say for example this is vector vx. So यहाँ से हम कोई फ्लूइड एंटर करेंगे, उसका पर यूनिट वॉल्यूम होगा, स्टूडेंट्स. So if we enter some energy in this direction or in the direction of Vx, there would be some per unit volume of that particular energy. Then if it comes out from this side, then the divergence gives us a rate of fluid which come out per unit volume, students. So what divergence gives us? डाइवर्जेंस हमको क्या देता है? डाइवर्जन हमको यहाँ से हमने Vx डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी रे फ्लूइड यहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ से वो ओरिजिनेट होगा. तो जितना ओरिजिनेट होगा वो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर होगा. तो ये डाइवर्जेंस जो है वो हमको रेट दे रहा है ऑफ फ्लूइड विच कम आउट पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ से कितनी एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है वो मेज़र करने के लिए वी आर फाइंडिंग द डाइवर्जेंस. सिमिलरली ये Vx के लिए हुआ, हम Vy के लिए भी ये हो सकता है, Vz के लिए भी हो सकता है. मीन्स इट कवर्स del f1 by del x plus del f2 by del y plus del f3 by del z. So it gives us the rate of fluid which come out per unit volume. अभी बच्चों ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ से जितनी एनर्जी एंटर की उतनी ही एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी. यहाँ पे कोई प्रोसेस होगी जिसके वजह से वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. अगर यहाँ से हमने जितनी फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम एंटर किया उतना ही यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ. आई रिपीट, यहाँ से हमने जितनी एनर्जी और फ्लूइड एंटर किया उतना ही यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ. तो उसका मतलब ये है कि इस पे जितनी एनर्जी एंटर हुई उतनी ही बाहर निकली, तो उस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ. तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे सोलेनोइडल वेक्टर, स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलेनोइडल वेक्टर? तो रेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा. इट मीन्स तो डाइवर्जेंस है इसका वो ज़ीरो होगा. तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर है, ये सोलेनोइडल वेक्टर है, स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलेनोइडल वेक्टर?
So solenoidal vector. So what is solenoidal vector? If divergence of f is equals to 0, क्या बच्चों, डाइवर्जेंस f है वो 0 है, दैट मीन्स del f1 by del x, del f2 by del y, del f3 बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 0, ताकि पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, जितनी एनर्जी एंटर हुई उतनी ही यहाँ से ओरिजिनेट होगी. सो डाइवर्जेंस है वो 0 है. डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0, देन एफ then this vector f is called solenoidal vector, students. Then this is called solenoidal vector, students. Now second thing, अगर डाइवर्जेंस ऑफ f जो है वो ग्रेटर देन 0 है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट्स. डाइवर्जेंस ऑफ f, क्योंकि ये स्केलर फंक्शन है बिल्कुल, तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है. और दूसरी कंडीशन है डाइवर्जेंस f जो है वो लेस देन 0 है स्टूडेंट्स. अगर ये डाइवर्जेंट ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको बोलेंगे सोर्स वेक्टर, और ये लेस देन 0 है तो हम इसको बोलेंगे सिंक वेक्टर, स्टूडेंट्स. सो दिस इज द two properties of the divergence of a vector, students. अगर डाइवर्जेंस f ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे इसको सोर्स वेक्टर. अगर ये डाइवर्जेंस f जो है वो लेस देन 0 है स्टूडेंट्स, तो हम उसको बोलेंगे सिंक वेक्टर. So we have seen the physical interpretation of the divergence. So बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझना है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. वेरी सिंपल, जितनी भी एनर्जी एंटर होती है और यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है वो हम डाइवर्जेंस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अगर यहाँ से जितनी एनर्जी एंटर हुई उतनी ही यहाँ से ओरिजिनेट होगी, तो उसका मतलब ये है कि ये वेक्टर जो है ये सोलेनोइडल वेक्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस जो है वो 0 है. डाइवर्जेंस 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर है. अगर डाइवर्जेंस f ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट्स, तो ये सोर्स वेक्टर है, और डाइवर्जेंस f लेस देन 0 है स्टूडेंट्स, तो ये सिंक वेक्टर कहा जाता है स्टूडेंट्स. सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, स्टूडेंट्स. नाउ विल सी curl of a vector. कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या है, देखते हैं डेफिनेशन. लेट एफ बार मीन्स f1, f2, f3
is vector point function. Then curl, curl, curl of a vector can be denoted by del cross, denoted by curl F, which is defined by del cross F. So how will define it? कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या है? एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है. देन कर्ल ऑफ अ वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय कर्ल एफ, which is defined del cross f. Now what is del cross f? Now del क्रॉस f, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है. तो हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट 3 डायरेक्शन i j n k, डेल, डेल है वो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और ये जो है वो डेल बाई डेल जेड है. और एफ है हमारे पास f1, f2, f3 स्टूडेंट्स. सो इफ यू वांट टू राइट a cross b, then how we were writing a cross b? We are writing a cross b I j k a1 a2 a3 b1 b2 b3. If you simplify it, it always gives us a vector. Similarly, if you simplify this, it has a direction, so it gives a vector, students. So now there is a knot, curl of a vector is always vector. Curl of a vector is always vector, students. And remember it, divergence of a vector is a scalar, and the gradient of a scalar function is vector, and curl of a vector is always vector because it gives a vector quantity, students. Determinant I j k, del means del by del x, del by del y, del by del z, and f means f1, f2, f3, which gives us the vector. This is the meaning of the cross product, students, that you have already been studied in your 12th standard, students. So this is the simple cross product. Now physical meaning of a कर्ल. कर्ल का फिजिकल मीनिंग क्या है, स्टूडेंट्स? कर्ल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी हमको देता है. कर्ल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी देता है. एंगुलर वेलोसिटी के लिए कोई भी वेक्टर जो है
रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोई भी वेक्टर जो है वो रोटेशनल वेक्टर होना चाहिए स्टूडेंट्स. आई रिपीट, what is the physical meaning of a curl? Curl gives us the angular velocity of a vector which is rotational. For example, यहाँ पे हमने एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर p है और ये जो है ये रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये जो है रोटेट हो रहा है, ये वेक्टर जो है वो रोटेट हो रहा है. तो यहाँ पे एक ऐसी रोटेटिंग वेक्टर है, तो बिल्कुल एक ऐसा डायग्राम जनरेट होगा. तो ये वेक्टर है रोटेशनल है और ये ऐसा हुआ तो इसकी हम एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं. तो कर्ल जो है वो हमको क्या दे रहा है? कर्ल जो है वो हमको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है. किसकी? रोटेशनल वेक्टर की स्टूडेंट्स. देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो हमने डाइवर्जेंस में भी देखा था, अगर सेम एनर्जी से उतनी ही एनर्जी ओरिजिनेट हो रही है, उसका मतलब ये है कि उसका डाइवर्जेंट जीरो है, तो हम उसको बोलते थे सोलेनोइडल वेक्टर. यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल रोटेशन नहीं है, तो रोटेशन नहीं है इट मीन्स ये वेक्टर जो है वो इरोटेशनल है, ये वेक्टर रोटेट नहीं हो रहा है, इरोटेशनल है, तो हम उसको बोलेंगे इरोटेशनल वेक्टर. कब इरोटेशनल वेक्टर बोलेंगे? जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी. अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो क्या जीरो होगा? कर्ल जीरो होगा स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरोटेशनल वेक्टर? रोटेशनल वेक्टर. कब बोलेंगे इरोटेशनल वेक्टर? If curl of f is equals to 0 students, then we can say it is a irrotational vector. अगर कर्ल f 0 है तो उसका मतलब ये हुआ, ये जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z f1 f2 f3, अगर कर्ल f 0 है स्टूडेंट्स तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या है? 0 है. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेक्टर इज इरोटेशनल वेक्टर. क्यों इरोटेशनल है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी उसकी 0 है, वो वेक्टर रोटेट नहीं हो रहा है. अगर ये वेक्टर रोटेट हो रहा है देन वी कैन फाइंड एंगुलर velocity. If you find angular velocity, that can be find it out using curl of a vector students. So today or in this lecture we have discussed two most important part. One is divergence of a vector and another one is a curl of a vector students, and we have seen the physical meaning of divergence and as well as curl of a vector. Please revise it ट्वाइस थ्राइस. बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चों ये रिवाइज कीजिए क्योंकि इसके बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल करेंगे. एक बार इसको रिवीजन कर दो. डाइवर्जेंस क्या है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कर्ल क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इरोटेशनल वेक्टर क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर क्या है. यू रिवाइज इट, देन इन नेक्स्ट वीडियो we'll see the example of divergence of a vector and curl of a vector students. Thank you very much.